Yeah, dear students, let us check with the next question. Question number 9 of your textbook we are now checking out. Okay. Parthiv and Priya are two partners of a firm. Their trial balance is given to you. Adjustments are given to you. They ask you to prepare final accounts. See, how should you move with the question? First, read adjustment. First adjustment. Provide interest 8% on capital. So, capital को आप पहले ही टिक कर दोगे. And 12% on drawing. तो drawing को भी आप टिक कर दोगे. Okay. Then comes credit sales of this are not recorded. And total of sales book is having some problem. So sales and purchase, credit sales and but it will be credit sales and naturally sales are related to debtors. So highlight of the question here, debtors and creditors are given in the form of receivables and payables. Okay. Next, write off additional bad debts and BDR. So this will again struck debtors, one adjustment and one goes to PL. Next, furniture of rupees 4,000 is absolute. So ये पूरा furniture loss हो गया है, furniture को adjustment लगेगी, उसको टिक करके रखेंगे. Next, court has filed a case against the meeting agreement of ours against our customer. हमने timely नहीं दिया है. तो ये फाइन है, एक लॉस होगा, एक बैलेंस शीट में लाइबिलिटी अमाउंट देना बाकी है. लास्ट एडजस्टमेंट, दिस सम वी आर डूइंग स्पेशली बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट्स. आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 200 is recorded to wages account, but outstanding wages account is not recorded in the trial balance. In this way, single line effect is there. Here wages account is already affected, only outstanding wages account is not affected, so that we will check out. So wages को टिक करने की जरूरत नहीं है because it has been already adjusted to wages account. Okay dear students, so let us revise. Step 1, check adjustments. Okay, adjustments को check किया और पूरे को जो then टिक कर दिया जो जिनके साथ एप्लीकेबल है एडजस्टमेंट. स्टेप 2, ओके, रिकॉर्ड बैलेंसेस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स. उन अकाउंट्स में लेके जाएंगे. लेट अस सी, लाइक आई एम शोइंग यू विद द क्वेश्चन वेयर आई हैव डन. Drawings account will directly go to partners. Drawings will go to partners. Capital account. Drawings I have taken to partners capital debit side. Same manner. Next, net cost of purchase. Only debit side I am touching first. This adjusted purchases 1,06,000 directly which account? Trading. Goods वाले सारे trading में जाएंगे. Next, debit side item if you can check. Stock of goods it is there. Last date है. Closing stock. Debit side दिया होगा तो सीधा बैलेंस शीट में जाएगा. बैलेंस शीट current asset closing stock 28,000. Next, receivables. These are our debtors. तो current asset बैलेंस शीट receivables inner side देखो टिक की है इसलिए internal column में बैलेंस शीट में मैंने लिखा 48,000. Same way अब ये भी इंटरेस्टिंग आइटम, वेजेस इन सैलरी. पहले वेजेस है इसीलिए कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में. पहले सैलरी होता तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते? पीएल में, एडमिनिस्ट्रेटिव में. लेकिन पहले वेजेस है इसलिए ट्रेडिंग में जाएगा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर. ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, दो दे आर ट्रेडिंग बट रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, वी रिकॉर्ड इन पीएल अंडर हेडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. Then goes building. Building हमारी fixed asset. Directly balance sheet we take it. No adjustment outside. Then furnitures. Fixed asset but adjustment है inner column. Next, office equipments directly our fixed asset outside. Then packing material. Very interesting item जिसके लिए मैंने सारा लिया है. Packing material stock है. इसको भी सीधा stock है तो हमारी asset है. Current asset. Check it out. Current asset balance sheet. Packing material stock.
Okay. Last, cash balance. Again, it is what for business? Current asset. Balance sheet, current asset, cash balance. डेबिट साइड कंप्लीट हो गया सारे आइटम्स. ऐसे ही क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे. पहले कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है. सी, चेक योर सम. कैपिटल goes to capital account, balance brought forward, date will be 1/4. Okay. Then sales. Sales कहाँ? गुड्स वाला है तो ट्रेडिंग में क्रेडिट. ट्रेडिंग में मैंने क्रेडिट किया है. इसके बाद पेएबल्स, लेकिन अंदर क्यों रखा है? क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है. ओके. नाउ पेएबल्स. Payables means creditors, current liability. Here two heads will be there. Capital account and other liability. Payables, no adjustment outside. Interesting. Goods distributed at sample. Goods है तो ट्रेडिंग में ही जाएगा. ट्रेडिंग में हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है परचेसेस में से क्या करना है? माइनस. तो मैंने कर दिया 1,06,000 minus 2,000. Outside 1,04,000. Next, bank OD. What for business? Liability. Go for it. Liability, other liability, bank OD, no adjustment, directly outside 14,000. तो ये easy है. In board, if you set in only items properly, you get marks nicely. So go for this style, will help you, will increase your confidence. चलो, we start with the question. एक बार सारा अपने ट्रायल बैलेंस के अकाउंट्स को शिफ्ट कर दिया. वी गो टू एडजस्टमेंट नंबर 1. फर्स्ट एडजस्टमेंट. प्लीज बी वेरी केयरफुल विथ एडजस्टमेंट. फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन हाउ मच? 8%. ओके. चेक आउट कैपिटल ऑफ पार्थिव एंड प्रिया. आई एम टेकिंग एडजस्टमेंट्स एंड एडजस्टमेंट में भी हम सॉल्व कर रहे हैं. एडजस्टमेंट नंबर 1. Interest on capital first, 24,000 it is of Parthiv and 16,000 it is of Priya. There is no other changes given in this. So directly 8% if you calculate of Parthiv and of Priya. Okay. Interest on capital comes to 1920 and 1280 respectively for both partners. I will go for recording this. Interest on capital. What for partner? Income. जहां जहां कैपिटल वहां वहां उसका इंटरेस्ट. पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर के लिए इनकम है. लास्ट डेट ऑफ द ईयर 31st March 2017. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके. 1920 1280. इनकम फॉर पार्टनर. एडजस्टमेंट है, सेकेंड इफेक्ट होगा. बट एक्सपेंस फॉर फर्म. बट पार्टनर से एक्सपेंस है इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्थिव एंड प्रिया. पार्थिव का 1920, प्रिया का 1280. टेक टोटल 3200 आउटसाइड. Adjustment 1 complete. Let us check adjustment number 2. Peacefully, आराम से अच्छे से adjustments को समझना है. Number 2. 12% on drawing. Interest on drawing is how much? 12. But they have given you some information. Parthiv has withdrawn 400 at the end of each month. Okay. While एंड ऑफ ईच मंथ. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात कर रहे हैं. पार्थिव जो पार्टनर नंबर 1 है 400 एंड ऑफ ईच मंथ. दैट मीन्स कॉन्जिक्यूटिव विड्रॉवल है उसका. ओके. इंटरेस्ट तो 12% ही लगेगा. बट एंड ऑफ ईच मंथ है तो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो थ्रू आउट द ईयर करेंगे तो 66 मंथ्स बाई 12 का कैलकुलेशन आएगा. वी हैव अंडरस्टूड. अगर बिगनिंग हो तो 78 मंथ्स का कैलकुलेशन आता है और एंड होता है तो 66 का आता है एंड मिड हो तो 72 मंथ्स का. वी हैव सीन दिस फॉर पार्थिव इट वाज देयर. चेक फॉर प्रिया. प्रिया हैज विड्रॉन द अमाउंट ऑन 1/10/16. जो पार्टनर 2 है उसका देखो ड्रॉइंग है कितना प्रिया का 3200 उसने विड्रॉ तो किया है. 12% इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा 12%. बट कितने मंथ्स के लिए? फ्रॉम 1/10, 10, 11, 12,
1, 2, 3, that means October, November, December, January, February, March. 6 months के लिए इसका इंटरेस्ट चढ़ेगा. Okay, so accordingly interest on drawing, if you calculate, it comes to 264 and 192 respectively. अब आप बोलोगे ये 400 क्यों लिया है? If you see, पार्थिव टोटल 4800, टोटल 4800 पूरा महीना, हर महीने विड्रॉवल है. इफ यू डू इट बाय 12, per month withdrawal is 400. And when we put into the formula with the period of per month wise, so here amount per month is to be taken with drawings or drawings per month. Short sum में हमने इस point को पहले भी समझा हुआ है. Let us go for recording interest on drawing. Income for firm, expense for partner. नहीं कुछ भी याद रहता है. पार्टनर्स में ड्राइंग डेबिट होती है तो उसका इंटरेस्ट भी डेबिट होगा. लास्ट डेट ऑफ ईयर 31 मार्च को ड्राइंग डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट. 264, 192 रिस्पेक्टिवली. वन इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल, सेकेंड इफेक्ट गोज टू पीएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि पार्टनर की एडजस्टमेंट है. वहां डेबिट तो यहां क्रेडिट. टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग for Parthiv and for Priya. Parthiv 264, Priya 192. Total comes to 456. Okay. Let us go for adjustment. Move on with the adjustment. Here adjustment number 1 is only complete. 2 we go for. Credit sales of 10,000 is not recorded. ओके, एंड टोटल ऑफ सेल्स ऑफ मार्च इज ओवरकास्टेड. दो अलग चीजें हैं. पहले हम इतना ही करते हैं. क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड. ओके, दो चीजें जब भी हो एक एक करके लो, दो इफेक्ट देने हैं. सेल्स नहीं रिकॉर्ड हुई है तो सेल्स में प्लस होगा, बट ऑब्वियस है, और डेप्टर्स में भी प्लस. सो गो फॉर इट. पहले ट्रेडिंग में सेल्स में क्या करेंगे हम? प्लस. अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000 याद रखना है. इनर साइड टोटल रखेंगे 210. स्टिल एडजस्टमेंट इज देयर. सेकेंड इफेक्ट अनरिकॉर्डेड सेल्स. बैलेंस शीट में डेप्टर्स में प्लस, अनरिकॉर्डेड सेल्स डेप्टर्स में 10,000. आप डेप्टर भी क्या हो जाएंगे? प्लस 58,000. Okay, still this two effects of this particular unrecorded sales are complete. Now let us continue with adjustment. Here it goes, total of sales book of March is overcasted by 2,000. सिर्फ सेल्स बुक है. सेल्स बुक की एडजस्टमेंट के लिए इफेक्ट देना है. ओनली सेल्स बुक इज ओवरकास्टेड. अगर आपको याद है, अगर सेल्स बुक ओवरकास्ट हुआ है मींस ज्यादा क्रेडिट हो गया है. एंट्री पास करते थे आप सेल्स अकाउंट. मैं एंट्री पास करके कनेक्ट करके दिखा रही हूं आपको, इजी रहेगा. सेल्स इज ओवरकास्टेड, सो क्रेडिट ज्यादा हो गया था तो हम इस तरह से एंट्री पास करते थे. सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, राइट, 2,000 रुपीज. आप नॉर्मली अगर होता तो एंट्री इस तरह से पास करते एडजस्टमेंट की. क्योंकि ओवरकास्ट हो गया है तो क्रेडिट ज्यादा हो गया, आप डेबिट करेंगे. सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. नाउ इन क्वेश्चन डायरेक्ट सस्पेंस इज नॉट गिवन. दैट मीन्स देयर इज सम कॉम्प्लीमेंट्री एरर विच विल कम टू नो. बट राइट नाउ सेल्स को हमको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरकास्ट हुआ है तो ज्यादा क्रेडिट हो गया है. उसका करेक्ट बैलेंस चाहिए तो हमको सेल्स को क्या करना पड़ेगा? 2,000 रुपीज क्रेडिट करने पड़ेंगे. सो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से करेंगे आप माइनस टोटल ओवरकास्टेड. इस तरह से 2,000 रुपीज माइनस करेंगे. सिंगलटन इफेक्ट होगा ये. If suspense balance was given, we would have adjusted there. But as no suspense balance is there, only single-end effect will come here. If you can remember, wages की single effect है 2,000 का, इसलिए ये दोनों आमने सामने एक तरीके का compensatory error है.
sum में. So only single end effect will be coming here. Let us go to next adjustment. Okay, जितना practice करेंगे पता चलेगा. Third adjustment, like 11th standard, very common. Bad debts, additional bad debts in 2000 के, and we have to provide for BDR at the rate of 5%. So now we can go directly check in for the balance. Balance sheet में पहले देखेंगे डेप्टर्स कितने हैं. डेप्टर्स अभी कितने हैं 58,000. उसमें से माइनस करेंगे आप बैड डेप्स न्यू. एडजस्टमेंट में बोला है बैड डेप्स 2000. दिस कम्स टू 56,000 और इस 56 पे बीडीआर कैलकुलेट करना है. बीडीआर आपको 5% बोला है. बीडीआर न्यू 5% of this comes to 2,800. Net amount outside 53,200. Okay. So one effect goes to debt. आता है 11th का repeated है. Second effect balance sheet में हो गया. अब PL में second effect is there. Second effect here goes directly to PL account. Other expenses and losses में यहाँ लिखेंगे आप. ओल्ड क्योंकि नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली न्यू. बैड डेब्ट्स न्यू 2000 प्लस बीडीआर न्यू 2,800 आउटसाइड 4,800. ओके, सो दिस एडजस्टमेंट नंबर 3 इज कंप्लीट. गो फॉर एडजस्टमेंट नंबर 4. Furniture of 4,000 has become absolute, which is not recorded. Absolute means totally of no use. उसका कोई वैल्यू, कुछ भी स्क्रैप भी नहीं मिलेगा, भंगार भी नहीं है, तो माइनस कर दें. डायरेक्टली ये आप माइनस कर देंगे, लिख देंगे लॉस. और एब्सोल्यूट फर्नीचर 4,000 का कंप्लीट लॉस है बिजनेस का. आउटसाइड 6,000 जाएगा. 10 में से 4 माइनस. सेकेंड इफेक्ट आप दे सकते हैं सीधा यहाँ पे. ड्यू लॉस ड्यू टू फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स. सीधा 4,000 का बिजनेस को लॉस है. पीएल में डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट क्योंकि लॉस है. ओके, लेट अस गो टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट. अगेन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. कोर्ट हैज फाइनलाइज्ड अ क्लेम ऑफ 4,000 फॉर नॉट मीटिंग एग्रीमेंट. हमने कस्टमर को एग्रीमेंट टाइम पे चीजें नहीं दी है, तो कोर्ट ने 4,000 का हमारे ऊपर क्लेम फाइनलाइज किया है. पहली चीज, ऐसा कोर्ट क्लेम बिजनेस के लिए लॉस होगा. पीएल में डेबिट करेंगे टू लॉस ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट. 4,000 का कोर्ट ने क्लेम फिक्स किया है, पैसे देना बाकी है. सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी. हियर यू विल राइट आउटस्टैंडिंग कोर्ट क्लेम और ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट. ओके, आउटस्टैंडिंग कोर्ट क्लेम है 4,000 का. सो वन इफेक्ट बिजनेस लॉस, पीएल में डेबिट. अनदर इफेक्ट बैलेंस शीट में क्या किया अपन ने, इसको लायबिलिटी दिखाया, पैसे देना बाकी है. लेट अस चेक विद द नेक्स्ट एडजस्टमेंट. हियर आउटस्टैंडिंग वेजेस आर 2,000 रिकॉर्डेड टू वेजेस. सिंपल है, वेजेस में रिकॉर्ड कर दिया है, बट आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में नहीं रिकॉर्ड किया है. नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस. अगर ट्रायल बैलेंस में होता तो भी आउटस्टैंडिंग वेजेस आर लायबिलिटी. बैलेंस शीट में सीधा वन सिंगल एंट इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹2,000. ये कॉम्पनसेटरी एरर वाली बात हो रही थी यहाँ पे. सो दिस वे ऑल एडजस्टमेंट एक्सटर्नल आर ओवर. In this question, internal adjustment is not there. Let us start closing it. Shutdown start कर देंगे. पहले ट्रेडिंग अकाउंट बंद होगा. ट्रेडिंग का टोटल 2,08,000 माइनस 1,14,000. So remaining becomes your gross profit. Gross profit transferred to what? PL. Here gross profit comes to 94. ये हमारा डिफरेंस है, इसमें से इसको माइनस किया अपन ने. सो दिस कम्स टू 2,08,000. नाउ दिस जीपी विल बी, प्रॉफिट है, इससे सीधा पीएल में ट्रांसफर होगा. लॉस होता तो डेबिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट. बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड. ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड.
94,000 और कोई क्रेडिट का आइटम नहीं है, क्लोज करें इसको भी। 94,000 ग्रैंड टोटल करके डबल लाइन दे दे। ओके, यहाँ डिफरेंस आ रहा है नेट प्रॉफिट बिकॉज डेबिट्स आर लेस here. Debits are less, credit is more. 94 minus these all debits, difference is 65,200, which is net profit. Again transfer from PL, it will go to PL appro by net profit. Loss होता तो debit, profit है इसलिए transfer to credit side 65,200. Let us close now appropriation. ग्रैंड टोटल अगर देखो तो बहुत इजी है, 65656565656. ओके, फ्रॉम दिस 3200 हम माइनस करेंगे, सो डेबिट खाली एक 32 है. दिस 62,456 इज नथिंग बट डिविजिबल प्रॉफिट. इसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट. As PL was not given to us, so PL will be distributed equally among Parthiv and Priya. So that comes to 31,228. 31,228. Please don't forget to close this, and this also will be transferred. Divisible profit partners का है, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. पार्टनर की इनकम है, क्रेडिट करेंगे. बाय डीपी ट्रांसफर्ड 31,228, 31,228. Again, okay. Now start closing capital account. Here क्रेडिट साइड का इधर का टोटल है 57,148, 48,508. डिफरेंस इसमें से डेबिट माइनस करेंगे, रिमेनिंग विल की बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड. वेयर वी विल कैरी फॉरवर्ड? बैलेंस शीट ऑफ कोर्स, फाइनल अकाउंट्स में. सो डिफरेंस कम्स टू 52,084 रुपीज, 45,116. ब्लॉक टोटल सिंगल लाइन एंड डबल लाइन बिलो. सो हमने ब्लॉक टोटल कर दिए. ट्रांसफर, डोंट फॉरगेट, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट. पार्थिव, प्रिया, पार्टनर 1, पार्टनर 2 आराम से ट्रांसफर कर देंगे. फिर बैलेंस शीट को टोटल करेंगे और बैलेंस शीट टैली हो जाएगी. लेट अस टेक इट. 52,084, 45,116 इसका टोटल करेंगे तो टोटल कम्स टू 97,200. देन टोटल अप द बैलेंस शीट. ब्लॉक करो, बैलेंस शीट को टोटल करेंगे. बैलेंस शीट 1,47,200, 1,47,000 total of all. Debit must tally with the credit. Thank you. Keep on practicing. Today, illustration number 2.